So today we are going to start talking about section 15.3, which is on partial derivatives with two variables. Now हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है such as y is equal to f of x, we know that f prime x, which is called as the derivative of this function, represents the function's rate of change as x changes. मतलब जब x increase होता है by a certain amount, then what is the change in the y is given by this derivative f prime x. How do we evaluate the derivatives of functions when we have more than two variables is the context of this section. So यहाँ पे हमें पता है कि instead of one independent variable, now we have two independent variables x and y, and we would want to know the effect of the change in x and change in y on the dependent variable, that is the z variable. So let's try and understand this using an example. Suppose you have a function which looks like this. If you have to take the derivative of this function with respect to the input variables, you call them as partial derivatives. जब हम y is equal to f of x की बात करते हैं, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन we take the derivative with respect to only one independent variable. But जब हमारे पास दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फंक्शन में, then we take partial derivatives. और partial क्यों बोलते हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. So if I have to take the derivative of this function with respect to x, I will assume y to be constant. So I will assume that y is not a variable but a constant, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगी, and I will get 3x square as my answer. Similarly, if I had to take the derivative of this function with respect to y, then again I will assume x to be constant and take the derivative with respect to y, which will give me 4y. Now these two, del z by del x and del z by del y, are called as partial derivatives. पार्शियल डेरिवेटिव्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि हमने ये 3x स्क्वायर आंसर निकाला है, तो ये बेसिकली आपको z का वो चेंज बताता है जो x की वजह से हुआ है, और 4y आपको z का वो चेंज बताता है जो y की वजह से हुआ है. इसीलिए ये फुल डेरिवेटिव्स नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है. So we say that everything else constant, what is the effect of the change in x on change in z? Similarly, everything else constant, what is the effect of change in y on z? So these are the values that we get and they are called as partial derivatives. Also note, very important, कि जब हम partial derivative represent करते हैं तो हमारी notation थोड़ी सी अलग होती है. यहाँ पे आप notice करोगे कि यहाँ पे जो मैंने ये डेरिवेटिव लिखा है, इसका d थोड़ा सा कर्व्ड है. rather than writing it as dz by dx, I've written it as a curved dz by divided by curved dx. This is the notation for partial derivatives. जब भी कहीं पे इस तरीके का साइन दिखे तो समझ जाना है कि आप यहाँ पे पहले तो z ऐसा फंक्शन है जो मोर देन टू वेरिएबल्स या टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, and then this value is giving you partial derivative, whereas this will give you a full derivative. Yeah. Let's also look at several other notations that we use for partial derivatives. So when we say that we are taking the partial derivative of the function with respect to x, then one form of writing it is this, del z by del x. You can also write it as del f by del x. Yeah. So z is nothing but a function, so you can also represent it as this. Similarly, if you have del z by del y, you can also represent it as del f by del y, or you can also write it as z सबस्क्रिप्ट में x, क्योंकि आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, and then prime. Similarly, here you can write it as zy prime. Here you can write it as fx prime, and here fy prime. यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में वेरिएबल मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनपुट वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं.
तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो डेरिवेटिव ले रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो. यूजुअली जब वन वेरिएबल का केस होता है तो बस हम प्राइम लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू ओनली हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे यू विल हैव टू मेंशन दैट. एंड अनदर वे ऑफ राइटिंग इट एज f1 प्राइम एंड f2 प्राइम. सो यहाँ पे 1 और 2 बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो कौन से वेरिएबल का सीक्वेंस नंबर 1 है और कौन से वेरिएबल का सीक्वेंस नंबर 2 है. So when you write z is equal to f of xy, then x comes first and y comes second. So अगर मैं f1 प्राइम लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, और अगर मैं f2 प्राइम ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ. So these are several notations of partial derivatives, and most commonly you will find these notations in use, so you have to get comfortable with these notations. यहाँ पे remember कि ये जो number है ये represent करता है order of the variable. Now one very important property of partial derivatives is that when we say that z is a function of x and y, it is important to note that f1 prime or f2 prime will also be a function of both x and y. z अगर function है x और y का, तो जब आप इसके partial derivatives लोगे with respect to x and y, then you will notice कि जो भी function आपको result में मिलेगा, that function will be a function of x and y. Yeah, and we'll look at an example to get this. Say you have f of xy or z is equal to x cube y plus x square y square plus x plus y. Now obviously ये function है, ये दिख रहा है हमें कि x और y का function है. Input variables x और y है. Now if I take the derivative of this with respect to x, I will assume y to be constant and x to be the variable. अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ मतलब x के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ तो ये हो जाएगा 3x square y. Only I'm only derivating x cube. Then यहाँ पे भी I'm only taking the derivative of x square. It will be 2x y square. Y square as it is आ जाएगा क्योंकि I'm assuming it to be a constant. Then x 1, and because y is a constant, this will be 0 and hence no term here. You will notice that f1 prime भी एक function है, and this function is in fact a function of both x and y again. So a very important property is that the partial derivatives of a function are also the function of the same inputs. Yeah. Again, if I take the derivative with respect to y, this will be x cube plus 2, sorry, yeah, plus 2x square y plus 2y. Yeah. x के सारे terms को constant मानना है and only derivating with respect to y. Again, you notice that f2 prime or partial derivative of the function with respect to y is also a function of x and values. Now let's look at higher order partial derivatives and what is the meaning of these higher order partial. So जब z एक function है x और y का, तो fx prime और fy prime या f1 prime और f2 prime कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. एंड वी जस्ट सेड कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ये अगेन फंक्शन होते हैं दो वेरिएबल्स के, विच इज x एंड y. फ्रॉम दीज न्यू फंक्शंस जो कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव के मिले हैं, हम एक और नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं. नाउ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का भी जो ऑपरेशन है वो सेम है जैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था. द ओनली थिंग इज दैट नाउ इंस्टेड ऑफ डेरिवेटिंग दिस फंक्शन आप डेरिवेट कर रहे हो f1 प्राइम और f2 प्राइम के फंक्शन को. तो यहां पे आप देखोगे कि चार पॉसिबिलिटीज है क्योंकि हमें पता है कि f1 प्राइम इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. आप यहां से दो डेरिवेटिव्स और निकाल सकते हो. एक डेरिवेटिव होगा f1 प्राइम का विद रिस्पेक्ट टू x, एक डेरिवेटिव होगा f1 प्राइम का विद रिस्पेक्ट टू y. सो यू कैन हैव टू डेरिवेटिव्स हियर and I will write them as f11 double prime because, and I'll explain what this f11 double prime is, and f12 double prime. Similarly f2 prime को भी आप
दो बारी डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक बारी विद रिस्पेक्ट टू x which is f21 double prime और एक बारी with respect to y which is f22 double prime. Let's look at how you can represent them in the form of derivatives. So we basically have del f by del x. ठीक है, now del f by del x को मैं दोबारा डेरिवेट कर रही हूं with respect to x and that gives me the second order derivative of the function with respect to x. ठीक है, then I have, this is the first possibility. The second possibility is that I am taking the derivative of del f by del x with respect to y. Again a second order derivative. यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, डिनोमिनेटर में जो आपको वेरिएबल्स की सीक्वेंस दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल जस्ट कम टू दैट पॉइंट कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. Then the third possibility is that you take the derivative of del f by del y with respect to x. That could be written as del square f by del x del y. And the fourth possibility is taking the derivative of del f by del y with respect to y. These are the four possibilities. Now it is very very important to note कि ये जो सीक्वेंस है इसका क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. ये चार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है when you have a function of two variables. अगर टू से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे किसी फंक्शन में तो चार से ज्यादा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पॉसिबिलिटी होगी. यहाँ पे जब आप ये लिख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इसका मतलब है कि आप डेल एफ बाय डेल एक्स को दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो और ये आपको डिनोमिनेटर देख के समझ में आ रहा है कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में दो बारी डेरिवेट कर रहे हो. इसको हम f11 डबल प्राइम लिख सकते हैं बिकॉज हम फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल को ही फर्स्ट ऑर्डर, बाय ऑर्डर आई मीन द सीक्वेंस, जो फर्स्ट नंबर पे है वेरिएबल उसी को हम दोबारा उसी से डेरिवेट कर रहे हैं. और I can also write it as fxx double. Now this derivative, the second derivative, जहां पे आप f1 प्राइम को मतलब del f by del x को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, इसको हम लिखते हैं f12 डबल प्राइम. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो वो वाला वेरिएबल आ रहा है जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हो, ठीक है, और सेकंड नंबर पे वो वाला वेरिएबल आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो. तो ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यूजुअली f12 और f21 में कंफ्यूजन होती है कि इसका क्या मतलब है. सो दैट हैज टू बी क्लियर्ड कि पहले वो वाला वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो, दूसरा वो वाला वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो. और यहां पे भी जब आप इस सीक्वेंस में लिख रहे हो तो आपको नोट करना है कि डेल वाई यहां पर आ रहा है क्योंकि आप डेरिवेटिव डेल वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हो. तो डिनोमिनेटर में भी डेल वाई का और डेल एक्स का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इट हैज बीन फाउंड एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड एज यंग्स थ्योरम कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मोस्ट फंक्शंस के लिए सेम होती है, लेकिन फिर भी आपको डेल वाई और डेल एक्स की सीक्वेंस को ध्यान में रखना है. So now here what are you doing? You are taking the derivative of the second variable with respect to the first variable f y x double prime. So इस तरीके से हम second order derivatives को represent कर सकते हैं. The last one is simple. यहाँ पे आप y को दोबारा y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो. This and this has to be cleared कि यहाँ पे f12 लिख रहे हो क्योंकि आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, देन आप उस fx का डेरिवेटिव fx प्राइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो. तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, पहले x आएगा फिर y आएगा. सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो इसलिए 2 पहले है, फिर आप f2 प्राइम का या fy प्राइम का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए आएगा f21 डबल प्राइम या fyx डबल प्राइम. ठीक है, तो ये चार सेकंड ऑर्डर पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की पॉसिबिलिटीज है जो एग्जिस्ट
करती है. Taking the derivative is quite simple. So if you notice the same example यहाँ पे जो हमने लिया था, यहाँ पे आपके पास f1 प्राइम है, f2 प्राइम है. आप इसको यूज करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो. फ्रॉम f1 प्राइम यू कैन कैलकुलेट f11 डबल प्राइम. आप दोबारा इस फंक्शन को 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर सकते हो. अगेन द ऑपरेशन इज सेम. आपको फिर वही करना है. आपको अब f1 प्राइम का फंक्शन लेना है और आप इसको डेरिवेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप y को कांस्टेंट अज्यूम करोगे. ये हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे अगेन y इज कांस्टेंट, सो यू विल हैव 2y स्क्वायर. सिमिलरली आप f12 डबल प्राइम ले सकते हो. f12 डबल प्राइम का मतलब है f1 प्राइम को 2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy. सिमिलरली आप f2 प्राइम से भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो. सो यू विल हैव f21 डबल प्राइम. इसको आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, which will give you 3x square plus 4xy. अगेन नोट, जो मैंने अभी एक बात बोली थी कि यंग्स थ्योरम बोलती है कि f12 डबल प्राइम और f21 डबल प्राइम दोनों फंक्शंस एक फंक्शन का सेम आता है. और ये आप यहाँ पे इस एग्जांपल में नोट भी कर रहे हो कि f12 डबल प्राइम और f21 डबल प्राइम एक्चुअली में सेम आ रहा है. मोस्ट फंक्शंस में आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है सेम आती है. देन यू कैन टेक f22 डबल प्राइम. इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो x क्यूब वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप x को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हो. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2. या तो इस तरीके से आप ये 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन के निकाल सकते हो जो फंक्शन मोर देन जो फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है, मतलब इनपुट में 2 वेरिएबल्स हैं. Now what we have looked at the functional meaning of partial derivatives. हमने देख लिया कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, लेकिन remember what is the meaning of partial derivatives? How do we interpret partial derivatives? So जब हम बात करते हैं वन वेरिएबल की y is equal to f of x, तो हम क्या बोलते थे कि f प्राइम x आपको क्या बताता है? f प्राइम x आपको बताता है f of x plus 1 minus f of x. Yeah, we say that derivative of the function with respect to x tells us the change in the functional value when x increases from x to x plus 1. Similarly, अगर हमको यही सेम चीज 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए लिखनी हो तो f x प्राइम x y को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का वो चेंज है, दिस इज द चेंज इन फंक्शन व्हेन x इज इंक्रीज्ड फ्रॉम x to x plus 1 but y is kept constant. So the partial derivative fx prime xy is approximately equal to, so यहाँ पे मैं इसको approximation का साइन लगा सकती हूँ. It is approximately equal to the change in f of xy that results from increasing x by 1 unit, keeping y constant. तो मैं y का इफेक्ट अगर कांस्टेंट रखूं, y की वैल्यू सेम रखूं और x को 1 यूनिट से इंक्रीज करूं, तो क्या चेंज आएगा फंक्शन में, वो ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स प्राइम बताता है. तो अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स प्राइम की वैल्यू फॉर अ गिवन फंक्शन कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, देन इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन है कि अ स्मॉल इंक्रीज इन y, a small increase in x will lead to an increase in y, will lead to an increase in function f of xy if y is constant. ये जो सेकेंड लाइन है if y is constant, it is very very important जब हम partial derivatives को इंटरप्रेट कर रहे हैं in this context of functions of two variables. तो अगर एफ एक्स प्राइम पॉजिटिव है देन इट रिप्रेजेंट्स कि जब y कांस्टेंट है और x इंक्रीज होता है बाय अ स्मॉल अमाउंट, देन द चेंज इन द फंक्शन विल बी पॉजिटिव.
या सिमिलरली अगर मैं एफ वाई प्राइम की बात करूं तो एफ वाई प्राइम क्या है? एफ वाई प्राइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द चेंज इन फंक्शन when y is increased by 1 unit and x is kept constant. So now what do you notice? You notice that the y is changing from y to y plus 1 and x is kept constant. So partial derivative fy prime is approximately equal to the change in fxy that results by increasing y by 1 unit while holding x constant. So again, if for a given function fy prime comes out to be positive, it indicates that a small increase in y will lead to an increase in z or function if x is kept constant. तो ये तभी होगा जब x कांस्टेंट रखा जाएगा. जब हम बोल रहे हैं कि एफ वाई प्राइम पॉजिटिव है या एफ एक्स प्राइम पॉजिटिव है, दिस विल ओनली हैपन व्हेन द इफेक्ट ऑफ द अदर वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट. इकोनॉमिक्स में बहुत बारी हम इस अजम्पशन को लेके चलते हैं and this is called as ceteris paribus, everything else constant. This is exactly what we are talking about when we say that if y is constant or if x is constant. Next, now that we've understood partial derivatives, किस तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, let's try and understand partial derivatives visually. partial derivatives को और tangent planes को हम visually देखेंगे and this is section 15.4 of your textbook. So let's look at the graph here to understand this कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि एफ एक्स प्राइम का मतलब क्या है कि अगर y कांस्टेंट है और x को आप एक स्मॉल यूनिट से इंक्रीज करते हो तो फंक्शन में क्या चेंज होगा वो एफ एक्स प्राइम बताता है. सो दिस इज द फिगर दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन. अगेन हम बेसिक फ्रेमवर्क से एक्वेंटेड है कि ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर z एक्सिस एंड ये जो शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज सम कर्व, सम सरफेस that is represented by z is equal to f of xy. ठीक है, ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है it is the surface, it is the function. Now let's try and understand कि अगर हम partial derivatives देखें तो उसका क्या मतलब होता है इस फ्रेमवर्क में. So let's first try and understand fx prime. fx prime का क्या मतलब है, मीनिंग हम वही सेम लेके चलेंगे अभी भी, which is कि अगर y को कांस्टेंट रखे और x को चेंज करे तो z में क्या चेंज होगा ये fx प्राइम से पता लगेगा. ठीक है, we'll do the same thing graphically now. So what we are doing, let us keep the value of y fixed at y0. हमने y को फिक्स करा है इस पॉइंट पे, फिक्सिंग y at this point y0. और हम प्रिसाइजली ऑब्वियसली जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हैं. तो लेट्स से कि हम जो डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं एफ एक्स प्राइम का वो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे निकाल रहे हैं. सो दिस इज द पॉइंट, एक्स नॉट यहाँ पर है, वाई नॉट यहाँ पर है. इसको एक्सिस में ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक पॉइंट मिलेगा एक्स नॉट वाई नॉट, जहां पे हम एफ एक्स प्राइम और एफ वाई प्राइम को इवेल्युएट कर रहे हैं. ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल रही है, ये वैल्यू पॉइंट P जो x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू है. सो दिस इज f ऑफ x नॉट y नॉट. ठीक है, अब हम यहाँ इस पॉइंट से ये जानना चाहते हैं कि f x प्राइम क्या है, व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. we'll go with the same definition which is that we want to keep y constant and understand the change in the function when x is increased by a small amount. तो अब हम y को कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं. if you look at this curve here ky, so there is this curve ky here which is represented by this line. ये जो कर्व है जो x नॉट y नॉट से पास कर रहा है इस कर्व को हम बोल रहे हैं ky. और ky बेसिकली वो कर्व है जहां पे इस कर्व पे अगर आप कोई भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी. एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व
You reach at any point, you are at this point, you are at this point, at this any point, value of x is changing but y is constant. Z is also changing because height हर जगह पे change हो रही है लेकिन y constant है. तो इस सरफेस में जो ये वाला कर्व है उस पे y constant है. Now if I move from t to a point which is greater than x नॉट, मतलब मैं अगर पॉइंट P पे हूं या अब पॉइंट P से अगर मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंचूं जो x नॉट से थोड़ा बड़ा है विच इज से x नॉट प्लस 1 जो कि इस तरफ होगा, तो आई वुड रीच इन दिस डायरेक्शन, आई वुड वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में अगर मैं जाती हूं तो व्हाट एम आई नोटिसिंग, दिस चेंज इन z बेसिकली अगर मैं इस कर्व पे मूव करूं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इस कर्व पे मूव करूं तो जो भी फंक्शन में चेंज आएगा वो बेसिकली बताएगा मेरे को एफ एक्स प्राइम की वैल्यू. नोटिस दैट व्हेन यू मूव फ्रॉम एक्स नॉट विच इज दिस पॉइंट पी, अगर आप एक्स नॉट से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाते हो तो आप एक्चुअली हाइट डिक्रीज कर रहे हो. आप p पे ज्यादा हाइट पे हो, मतलब p पे z की वैल्यू ज्यादा है, और p से जब आप आगे बढ़ते हो तो z की वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज हो रही है. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, वी कैन कंक्लूड दैट f x prime is actually negative here. f x prime is actually negative here. क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले एक कर्व लिया है ky और इस कर्व ky पे हम बोल रहे हैं कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू सेम है. आप कोई सा भी पॉइंट ले लो इस कर्व पे आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी. वी कैन ऑल्सो प्लॉट अ टेंजेंट दैट पासेस थ्रू दिस कर्व ky एट पॉइंट p. तो बेसिकली अगर इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स in one dimensional space, in two dimensional space, तो हमने बोला था कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो सपोज इस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप कर्व का टेंजेंट प्लॉट करोगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बेसिकली आपको फंक्शन का डेरिवेटिव बताता है उस पॉइंट पे. So if this is the curve and this is the point where I want to calculate the derivative, I will just take the tangent of this curve at this point, and जो भी इस टेंजेंट का स्लोप होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है मुझे, जो भी इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो मुझे इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताएगा. सिमिलर चीज हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में करने की कोशिश कर रहे हैं. हम यहाँ पे अब एक ऐसा कर्व ले रहे हैं जहां पे y की वैल्यू फिक्स्ड है और इस कर्व पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा ly, जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है पास होती हुई, या दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व ky एट पॉइंट p. ky इज दैट कर्व जहां पे y कांस्टेंट है. ये टेंजेंट पास हो रहा है फ्रॉम पॉइंट p, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट p टचिंग द कर्व ky. कि ये जो स्लोप है इस टेंजेंट की ये नेगेटिव है, इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड हेंस एफ एक्स प्राइम इज एक्चुअली नेगेटिव. और इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट P से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करोगे ऑन दिस कर्व ky, तो आप एक छोटी हाइट पे पहुंच रहे हो, और छोटी हाइट का मतलब है कि z की वैल्यू कम हो रही है. z की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि एफ एक्स प्राइम की वैल्यू नेगेटिव है. नाउ लेट अस लुक एट द fy प्राइम. सिमिलरली हम fy प्राइम कैलकुलेट करेंगे, बट fy प्राइम के लिए हमें x को कांस्टेंट रखना है. तो नाउ वी आर टेकिंग अ सेपरेट कर्व kx. On this curve you will notice कि any point on this curve will keep x constant. आप इस पॉइंट पे आ जाओ, आप इस पॉइंट पे आ जाओ, आप किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, x की वैल्यू सेम रहेगी. The only thing that is changing is y and z, और वो ही आप चाहते हो fy प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए. सिमिलर लॉजिक हम यूज करेंगे विच इज कि जब आप पॉइंट P पे हो, अगर आप पॉइंट P से एक ऐसे पॉइंट पे मूव करते हो जो y नॉट प्लस 1 की डायरेक्शन में है,
देन आर यू रीचिंग अ हायर हाइट, आप एक बड़ी हाइट पे पहुंच रहे हो, मतलब z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यू विल नोटिस कि इस पॉइंट P पे जब आप एक टेंजेंट प्लॉट करोगे which is Lx, then you notice that this tangent is actually positively sloped. मतलब कि अगर पॉइंट P से y की डायरेक्शन में आप मूव करो कीपिंग x कांस्टेंट, देन यू आर रीचिंग अ ग्रेटर हाइट, आप एक ज्यादा हाइट पे पहुंच रहे हो एज कंपेयर टू पॉइंट P, which means that fy prime is actually positive. So this is the curve kz, this is the tangent ly, sorry, this is the curve kx, this is the tangent lx, and the slope of this tangent will give you the partial derivative fy prime. Slope इस tangent का positive है, इसीलिए fy prime भी positive है. Yeah. So this is the geometric interpretation of partial derivatives. आप इसको कुछ इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो। ये जो हम यहाँ पे फिगरेटिवली देख रहे हैं, आप इसको थोड़ा विजुअली इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि सपोज ये जो ग्राफ है, ये आप सपोज करो एक माउंटेन का ग्राफ है, ठीक है। सो यू आर एट अ माउंटेन, और ये 3D फिगर है जो यहाँ पे ये कर्व दिखाया हुआ है। इमेजिन कि आप इस माउंटेन पे किसी एक पॉइंट पे हो एंड दैट पॉइंट इज P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x0 y0, ठीक है। और पॉइंट P x0 y0 कोऑर्डिनेट्स है। P जहां पर हो वो आपकी हाइट भी बताता है कि आप किस हाइट पे हो ना। fx प्राइम बेसिकली आपको ये बताएगा कि जब आप पॉइंट P से x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करोगे, मतलब व्हेन यू मूव पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, फ्रॉम पॉइंट P व्हेन यू मूव in the direction parallel to x axis which is this direction, then आप क्या, आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, दैट इज गिवन बाय fx प्राइम। अगर आप x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करते हो, मतलब यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द x एक्सिस keeping y constant, then if your height decreases, which means fx prime is negative. If your height increases, it means fx prime is positive. Similarly, अगर आप point P से y axis से parallel move करते हो, मतलब if you're moving in this direction parallel to y axis, keeping x constant, x की value same रखनी है, then is your functional value increasing, आप एक ज्यादा height पे पहुंच रहे हो या आप एक छोटी height पे पहुंच रहे हो, वो आपको बताएगा fy prime. So the steepness of the curve in the direction parallel to y-axis will tell you fy prime, and the steepness of the curve in the direction parallel to x-axis will tell you fx prime. So that is how we can understand fx prime and fy prime geometrically. और मीनिंग सेम है, जो हम फंक्शनली कैलकुलेट कर रहे हैं वही हम ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। Let us now quickly understand the geometric interpretation of double derivatives here. Again, just keep the basic understanding clear कि जब हम डबल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, सपोज मैं बात करूं, यहाँ पे हम सिर्फ दो तरीके के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कंसिडर कर रहे हैं, विच इज एफ एक्स एक्स प्राइम एंड एफ वाई वाई प्राइम। एफ एक्स वाई को अभी हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर रहे हैं। नाउ एफ एक्स एक्स प्राइम का क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये आपको बताता है कि व्हेन यू कीप वाई कांस्टेंट, राइट, यू आर बेसिकली टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है, तो आप क्या जानना चाह रहे हो, दैट व्हेन यू कीप y कांस्टेंट एंड यू मूव ऑन दिस कर्व ky इज द कर्व जहां पे y कांस्टेंट है, तो नाउ इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि z की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, आप देखोगे कि fx प्राइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मतलब कर्व का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जैसे आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम इस पॉइंट, इस कर्व के वाई पे मूव कर रहे हैं,
तो जो स्लोप है पॉइंट P पे इतनी है, आप एक और पॉइंट लो, यू विल टेक अनदर स्लोप, यहाँ पे यू कैन टेक अनदर स्लोप, लेट मी चेंज द कलर हियर, या so you can take a slope here, you can take another slope here, you can take another slope here. You will notice कि इस कर्व पे जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है एज यू मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप देखोगे जो आपकी स्लोप है वो एक्चुअली डिक्रीज हो रही है, which indicates that when y is kept constant and you move ahead in the direction parallel to x-axis, then fxx prime is actually negative. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x axis के parallel direction में move कर रहे हो, keeping y constant, you notice that the slope of the function is also decreasing. Now we are not checking कि height increase या decrease हो रही है, क्योंकि हाइट इंक्रीज या डिक्रीज आपको फंक्शन का चेंज बताएगी। क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो क्या स्लोप इंक्रीज हो रही है या स्लोप डिक्रीज हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है देन एफ एक्स एक्स प्राइम विल बी नेगेटिव, इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग देन एफ एक्स एक्स प्राइम विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली आप डबल डेरिवेटिव एफ वाई वाई को इंटरप्रेट करते हो।